اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ہم لوگوں کے پاس دینی شعور اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بتا سکے۔ اگر کوئی مسلمان سے غیر مسلم یہ پوچھ دے، اچھا یہ بتاؤ تمہارے اس میں مسلمان بھی کہتے ہیں اور مومن بھی کہتے ہیں، یہ کیا الگ الگ ہوتے ہیں یا ایک ہی ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو شاید ایک پڑھا لکھا انسان جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہت سی ڈگریاں بھی ہوں گی، لیکن وہ نہیں بتا سکے گا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں جو ہم لوگ اپنے کو تقوی والا، پرہیزگار اور متقی بھی سمجھتے ہیں، اللہ والا بھی سمجھتے ہیں، اگر ہم سے بھی کوئی سوال کر دے تو ہم سردیوں میں پسینہ چھوڑ دیں گے اور مالیہ بتا نہیں پائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ کون سا بچنے کا راستہ ہے، اور یہ بتائیں گے بھی تو اس کو تو ایسے جو جتنا ہمارے پاس علم ہے دین کا، بس اسی کے حساب سے بتا پائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے مسلمان وہ ہے جو مالیہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو، مسلمان جیسا نام ہو، رسم و رواج کرتا ہو، اور مومن وہ ہے جو مالیہ جو اللہ رسول کرتا ہو، یعنی سے جو مالیہ روزہ نماز ہر جگہ کرتا ہو، بس یہی فرق ہے۔ محترم، یہی فرق تو تھوڑا سا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات جو ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، اور ایک غیر مسلم کے نالج میں یہ بات ہونا چاہیے۔ وہ بھی بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ مسلمان سب ایک سے ہوتے ہیں، وہ تو یہ مومن کو سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن ہاں، جو ہمارے ہندو بھائی جو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، چاہے انگریزی میں پڑھیں یا ہندی زبان میں قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں، یا دوسری جو ان کی زبان ہے اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی مومن کون ہوتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کون ہوتے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کی بہت سی خوبیاں آئی ہیں، بہت سی خوبیاں بتائی گئی ہیں، اور وہ خوبیاں بھی جب تک مسلمان کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ جو ہے مومن نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں، قرآن مجید میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جو ہے مومنوں کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں کیا ہے۔ ہاں، وہ الگ چیز ہے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحیمی کریمی سے جیسے ان کو جنت نہیں، جنت الفردوس دے دے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم صرف ایسے مسلمان نام کے بنے رہیں اور امید بہت اچھی رکھیں کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ ہم بیٹھے ہوں گے، گاؤں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہماری جنت کا اتنی بڑی ہوگی جو جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی، اور وہ تمام چیزیں، اور یا جیسا کہ شیطان ان کو امیدوں میں گھمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے تم تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، ارے تم تو بخشائے ہو، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ ٹینشن وہ لیں۔ ارے اور ایسے اشعار بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، محمد کی امت جائے دوزخ کی جانب، محمد کو ہرگز گوارا نہ ہوگا۔ ایسے اشعار بھی سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیچارے سیدھے سادھے مسلمان اس میں جو ہے بہک جاتے ہیں، وہی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ لیکن محترم، اس کا کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ جو ہمارے بھائی قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو زندگی میں کبھی مومن و مسلمان میں فرق ان کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں،
अपने दिमागी घोड़े दौड़ा दौड़ा करके कुछ भी सोचते समझते रहें और उसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते रहें, लेकिन सही बात तक वो पहुंच ही नहीं सकते। अपने मनचाहे तरीके से हम मान लिया इंजन को चलाते रहें और उसके साथ में आई हुई गाइडलाइंस की बुक जो आई है उसको खोल करके ना देखें तो क्या हाल होगा अजीज़ मोहतरम। तो उसमें एक बात और आई है, यहाँ बहुत सी सिफ़ात मोमिनों की आई, इसमें आई है कि मोमिन कभी बख़ील नहीं होता, कंजूस नहीं होता। कंजूस भी मान लिया कई किस्म के होते हैं। एक तो कंजूस वो होता है कि वो अपनी ज़ात पे तो बहुत कुछ खर्च करता है, लेकिन दूसरे गरीब बेवा मिस्कीनों या दीन के काम में वो नहीं खर्च करता। और खर्च भी करता है तो मान लिया सामने दिखा करके देखो हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हमने उसमें इतना दिया उतना दिया, ये चीज़ होती है। और कोई ऐसे होते हैं कि अपनी ज़ात पे अपने अहलो अयाल पे भी नहीं खर्च करते, वो जोड़ जोड़ करके रखा करते हैं और न खा सकते हैं और न बेचारे कुछ पहन सकते हैं अच्छे से अच्छे न कपड़े। और जबकि ये है कि अल्लाह पाक ने अगर दिया है तो ऐसे लिबास पहनो, ऐसा खाना खाओ, दूसरों को खिलाओ ताकि मान लिया जो लोग देख करके ये कहें कि हाँ अल्लाह ताला ने इसको माना है, इसको मान लिया जो है मालदार बनाया है। ऐसी हालत शक्ल सूरत ना बनाए घूमो जो बेचारे महफिल में जाओ तो लोग देखें कि बेचारा ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। जब उसके बारे में पता लगा तो पता चलता है करोड़पति नहीं, लखपति नहीं, संघपति, ये तो बहुत बड़ा मालदार आदमी है। लेकिन ऐसा तो एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये में एक था उमैया बिन खल्फ, तो वो बहुत मालदार था, बहुत बड़ा मालदार था और लेकिन था वो बहुत कंजूस। यानी दिखावे में वाहवाही में तो सब कुछ करता था और ये भी कहता था कि हमारे बराबर पैसों में है ही कौन आसपास, और था ही भी मालदार। उसके 10 वो थे कहना गुलाम थे और दसों को उसने अलग अलग काम दे रखे थे बिजनेस के, उसमें इन्वेस्ट किया था। यानी उनको सबको मान लिया पैसा लगा करके दे दिया था और वो सब कमा के इनको देते थे। और उन्हीं के गुलामों में थे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जब उसको ये मालूम हुआ, उमैया बिन खल्फ को मालूम नहीं हुआ कि ये बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो मले ईमान ले आए हैं, मुसलमान हो गए हैं, तो उनके ऊपर सख्तियाँ करने लगा और लोगों को उसके ऊपर लगा दिया कि इसके ऊपर जुल्म करो, ज़्यादती करो, सब कुछ करो। तपती रेत के ऊपर उसको मान लिया नंगा करके लिटा देता, उसके सीने पे पत्थर रख देता और ना मालूम कौन कौन सा जुल्म सितम करता। बहरहाल वो इस नियत से करता कि ये अपने जो ये ईमान लाए हैं ये इससे बाज आ जाएं, फिर वापस हो जाएं ये जो थे पहले। तो उधर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले तो और कहा क्यों इसके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो, क्यों इसको काम के लिए सताते हो। तो उसने कहा अच्छा अगर तुमको इतना तरस आ रहा है तो ऐसा खरीद लो इसको। कहा अच्छा बताइए क्या कीमत है इसकी। और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम थी कि वो मलिया जुल्म कर रहा है और उसको देख कर का आपका चेहरे मुबारक उदास रहता था, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कह सकते थे।
हाँ, जब वो मान लिया पहुँच ने कहा अच्छा ज़्यादा तुमको तरस आ रहा है भाई। जब पूछा अच्छा क्यों सताते हो इनको, क्यों परेशान करते हो, क्यों जुल्म करते हो, तो कहे लगे ये जो है मेरा गुलाम है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ कौन, तुम कौन होते हो, और ज़्यादा हमदर्दी आ रही है तो इसको ख़रीद लो। कहा अच्छा बताओ इसकी क्या कीमत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख चुके थे पहले से, कितना उदास रहता है उसको देख करके। कहा हाँ, तो कहा अच्छा बताओ इसकी क्या कीमत है। कहा देखो अपना गुलाम दो जो तुम्हारे पास है, और इतनी रकम हमको और दो। उन्होंने बगैर चूं चला किए उसको ख़रीद लिया और आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया और कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैंने इसको ख़रीद लिया है, मैंने इसको ख़रीद लिया है। और बहरहाल फिर आप जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे से जानते हैं। बहरहाल जब मामले गज़वे तबूक का मौका आया तो उसमें बहुत पैसे की ज़रूरत, माल की ज़रूरत, सामान की ज़रूरत थी। तो हुआ कि मान लीजिए जिसके जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ला सके और मान लिया ला के दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि जितना हम दे देंगे उतना शायद कोई ना दे सके। उन्होंने अपने घर का आधा सामान ला के रख दिया। ये लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ अपने अहले वयाल के लिए छोड़ा है, अपने घर के लिए छोड़ा है। कहा हाँ अल्लाह के रसूल हमने आधा छोड़ दिया है, आधा उनका हक बनता है, हिस्सा बनता है, आधा हमने छोड़ दिया और आधा हम लाए हैं। इसके बाद में ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे थे। और ये जो वाक़या आप सुन रहे हैं ये हंसने हंसाने और कोई मान लिया दिल बहलाने के लिए नहीं, ये साथ साथ में हम अपने ऊपर निगाह भी डालते जाएं, गौर भी करते जाएं। हम कंजूस हैं, बख़ील हैं या अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले हैं। और ये भी ना सोचें कि अगर जिसके पास ज़्यादा होता है वही देता है। नहीं, सबसे बड़ा कंजूस वही होता है जो सबसे बड़ा इंसान होता है। अक्सर हमारा तजुर्बा है कि जब हम मान लिया चंदा करते थे अपने ईदगाह के लिए या और मान लिया दीनी काम के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास चंदा आता था तो बेचारे गरीब लोग जो मीडियम लोग होते हैं उन्हीं का आता था। बड़े बड़े लोगों के वहाँ से बहुत कम, ना के बराबर आता था। तो हाँ, ये बात चल रही थी। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि अच्छा ये आधा सामान लाए, घर गए, घर का पूरा सामान जितना था झाड़ू तक नहीं घर में छोड़ा और सब कुछ ला करके, और यहाँ तक कि यही नहीं बस यहीं पे बस नहीं किया, बल्कि जो मान लिया बदन पे कुर्ता पहने हुए थे, जो मान लिया कपड़ा पहने हुए थे, उसको भी निकाल के उसी में बांध दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लगे डाल दिया, ये लो। तो और जो मान लिया अपने जिस्म को छिपाने के लिए एक कंबल है, और वो भी पेवंद लगा हुआ, जिसको अगर मान लिया बेचा जाता तो शायद कोई ना खरीदता। और उसमें जो उसके सामने से उसको रोकने के लिए कि उसको हाथ से पकड़ना ना पड़े, तो वैसे उसमें बबूल के कांटे लगा दिए थे। मोहतरम, ये था उनका मामला। लेकिन हम लोग अपना जायज़ा लें कि देखें मोमिनों की जहाँ बहुत सी सिफ़ात हैं, उनमें एक ये भी सिफ़त है जो मान लिया बख़ील नहीं होते हैं। ख्वाह उनके पास कम हो या ज़्यादा हो, कोई इसकी वो ज़रूरत नहीं। अरे भाई कम है तो कम दो, यही तो है ना। और ये माली कौन सी बात है, जब ज़्यादा होता तो हम ज़्यादा देते। नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नहीं से थोड़ा अच्छा है। जो भी कुछ हो सके, जो अपना दिल करे। बहरहाल हम लोग अपना जायज़ा लेते चलें कि हम मान लिया मोमिनों की फ़हरिस्त में आते हैं या मान लिया मुसलमानों की फ़हरिस्त में। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔